नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद टू वेरी स्पेशल स्टार्स who you will be seeing in the film अनेक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना के बारे में और मैं बात कर रहा हूँ अंद्रेया केविचूसा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू उदय। गुड टू हैव यू बैक फर्स्टली आयुष्मान आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फिजिकली इस बार मिल रहे हैं दिल्ली में। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अनुभव कैसा है फिजिकल इंटरव्यूज करने का, दोबारा फिजिकल प्रमोशंस करने का, और वो भी एक ऐसे फिल्म के लिए जो बहुत ही खास है आपके लिए। आई थॉट आप थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करें तो अनुभव कैसे हैं? अनुभव सर अच्छे हैं और मेरा अनुभव कैसा है? ग्रेट, ऑलवेज गुड टू बी इन दिल्ली, क्योंकि ये मेन गढ़ है जहाँ पर आप मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं एंड यू आस्क वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। और इस फिल्म को लेकर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा अनुभव सर के साथ, बिकॉज इट्स एन एक्सटेंशन टू आर्टिकल 15। अनुभव रहा जी जी बिल्कुल, और इट्स एन एक्सटेंशन टू आर्टिकल 15। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इसमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रेसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, Andrea, for you, of course, you know, you're making your debut with this movie, so it had to be special. What appealed to you about the character, the script, and how was the filming like, and the whole experience? I think my character, she's a very liberated and strong-willed person, and they took a very interesting take, you know, as for someone from the Northeast, you know, to be fighting for identity, and trying to prove her her Indianness and why she should be as Indian as the rest of her peers, and it was a very overwhelming time, I would say, like from the time I started preparing for my role and trying to get into the psyche of a boxer, you know, and of course brushing up on the acting skills and everything. So it was an interesting time, but it's been going really well so far, and yeah, we can just hope for the best once the film is out. You know, it's your first experience, so how is it all soaking it? Is it as you always thought, the whole promotions journey, you know, the probably butterflies in the stomach now that release stays around the corner? I think just because everything is happening just like that, I feel like I'm being run over by a train, but like I've had like overwhelming love and support. Yeah, I mean, I don't really know what to expect. I'm just taking it one day at a time, being that this is my first film and this is the first time I'm even doing interviews and promotions, you know, like, and I actually haven't even seen the final edit, so I'm very excited to see, you know, it at the premiere, and yeah, we'll see how it goes. You've not seen anything? Yeah, I have not seen anything. I mean, I saw bits of it at the like dubbing and stuff, but I haven't seen the final. Of course. को-स्टार के तौर पे आयुष्मान कैसे थे? मैं आपसे पूछूंगा। It was आपने great. उनका कुछ काम देखा था पहले का? Were you excited? Yeah, of course. Yeah. I've watched a few of his films, and initially they didn't tell me who my co-star was going to be. They kept it like a big secret until months later, and they, you know, when I found out that it was going to be Ayushmann Khurrana, I was very excited because I know that he's very well reputed for the kinds of roles that he chooses. You know, I knew it was going to be an important film from the beginning. Yeah, and to be debuting and to be working with people like Sir Anubhav Sinha and Ayushmann, it's a great honor. हमें भी लगता है कि बस कल ही था कि आपने अपना फिल्म डेब्यू किया, मगर अब 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो हाउ इज दैट, यू नो, हैज इट संक इन कि आप अब 10 years old हैं, अब आप मेंटर रोल कर रहे हैं, you know, for debutants like Andrea? Andrea? It feels like we've grown together because you've been interviewing me for the past 10 years now, so we've seen each other. So I guess it feels like yesterday. And whenever I used to come to Delhi, I was always excited to see you and your interviews, and it's a very very, I think it's been a magical journey for me, because whatever I thought, जो मैंने सोचा था वो हुआ है. I'm living a dream, and I'm just fortunate that I've collaborated with great minds in the industry. So I owe it to them, I think. पर जब आप वापस देखते हैं आयुष्मान, और उससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया था, यू नो, रियलिटी और टेलीविजन और रेडियो, मगर फिल्म करियर, यू नो, विकी डोनर से अब तक, क्या आपको लगता है कि इट वाज ऑलवेज प्लान लाइक दिस, या फिर हो गया और पता नहीं चला और बड़ा अच्छा हुआ? ये बाय डिफॉल्ट भी है और बाय डिजाइन भी है। फिल्म की शुरुआत मेरी विकी डोनर से हुई थी, अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट था, मैंने ट्राई किया कन्वेंशनल फिल्में करने के लिए भी, मगर वाज इट बाय डिजाइन? विकी डोनर टू टुडे, बड़े अच्छे 10 साल बीते हैं। डू यू बिलीव इट वाज बाय डिजाइन, या बस हो गया और बड़ा अच्छा हुआ? मैं अनकन्वेंशनल एक्टर हूँ, मुझे शुरू से पता था कि मुझे एक अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट चाहिए था टू मेक स्पेस फॉर माई सेल्फ, और वही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। आई थिंक इट्स बाय डिजाइन एंड ऑल्सो बाय डिफॉल्ट, दोनों का संगम है मेरे हिसाब से। एंड पहली फिल्म के बाद मुझे लगता नहीं कि वैसी सब्जेक्ट्स मुझे मिल रहे थे। देन इट स्टार्टेड अगेन विद दम लगा के आयशा, सो वहाँ से जर्नी फिर से शुरू हुई, एंड आई एम ग्लैड दैट हैपेंड। और ये भी अच्छा है कि
आप एक ऐसे दौर में भी हैं जब इंडस्ट्री भी थोड़ा चेंज हो रहा है, यू नो, कंटेंट पे फोकस आया, नए राइटर्स आए, नए डायरेक्टर्स आए, डेब्यूटांट डायरेक्टर्स आए, तो आपको लगता है दौर भी बड़ा अच्छा मिला आपको? बहुत अच्छा दौर है। मुझे ये लगता है कि ये सबसे अच्छा दौर है किसी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, फिल्में भी हैं, टेलीविजन भी है, हर मीडियम पे आप अपने आप को आजमा सकते हैं, हर एक की ग्रामर अलग है, एक्टिंग की या डायरेक्शन की या स्क्रिप्टिंग की, बट वी आर लिविंग इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। और जब आप देखते हैं डेब्यूटांट्स को लाइक अंद्रेया, तो क्या सोचते हैं आप? आई थिंक दिस फिल्म इज रेवोल्यूशनरी, इट्स गोइंग टू बी हिस्टोरिक। ऐसी रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहां पर हमने नॉर्थ ईस्ट या फिर किसी और क्षेत्र के एक्टर्स को कास्ट किया है, एज कैरेक्टर्स कास्ट किए हैं बैक इन द डे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि शी इज द प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म, व्हिच इज अ ह्यूज स्टेप फॉर हिंदी सिनेमा। And do you also believe that, Andrea? Because, you know, you've been tracking the Hindi industry as well for so long. Ayushmann also introduced you, you know, on Instagram as the newest big star in Bollywood. You got a lot of love from industry peers and other actors and, you know, filmmakers. So what was that feeling like? And do you believe this is about time, you know, to have more representation in lead roles from the Northeast and other parts of the country? This film is a very important film, and there has been a lot of improvement in the past few years, I would say, but I think you know, there's still a lot more room to grow, but it's never too late. I really appreciate all the heartwarming, you know, welcomes that I've gotten, but you know, like growing up, I never really saw anyone that looked like me or that was from the northeastern region, you know, have too many major platforms in not just this industry but any other industry. And the fact that I get to stand here today and get these opportunities, it's a huge honor. And you know, a film like of this magnitude, I hope that it opens more doors for the future, for more future prospects, for people to kind of tap their talents into the industry from where I'm from, because I believe that there is a lot of talent back there. And why is that? You know, because we've had, of course, the great Danny, you know, Deng Zongpa, who's been a fantastic actor over the years. We've also had, you know, a few others, but one can't really think of too many, unfortunately. Is that unfortunate? It's very unfortunate because we've always seen them with like an alien gaze, कि ये हमारे में से नहीं है, ऐसा हमने देखा है। डैनी सर को हमेशा विलन के रोल्स मिले हैं, जो हमारी तरह दिखता नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं है, उसको विलन का रोल नहीं देना चाहिए। अगर आप इंक्लूसिव हैं एज एन इंडस्ट्री, सो यू शुड मेक श्योर दैट कैरेक्टर इज पॉजिटिव, या फिर दैट कैरेक्टर इज वन ऑफ अस, वो बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वो ये सोसाइटी से आता है। हमारी सोसाइटी बदल रही है, ऑफ कोर्स बदल रही है, लेकिन रेसिज्म अभी भी रैम्पेंट है। तो इट्स हाई टाइम कि हमें बाकी स्टेट से जो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, so that the change is through cinema, maybe entertainment के जरिए। I think cricket and cinema are the two big entities जहाँ से आप change ला सकते हैं, जो सबसे inclusive entities हैं। So I think this is a big step. No doubt. फिल्मिंग पे दोबारा लौटते हैं। फिल्मिंग का अनुभव कैसा रहा? अनुभव सिन्हा के संग दोबारा काम करना, और नॉर्थ ईस्ट में भी काफी आपने शूट किया, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं इस फिल्म में, इट्स लुकिंग वेरी रियल। तो वो आपके लिए कैसा था? वाज इट टायरिंग? और प्रेपरेशन फॉर द पार्ट कैसा रहा? Did you you know, research about what's actually happening in the Northeast? It was more of a first-hand experience. Back in the day, I had college friends from Northeast, तो उनको देख के पता चलता था they used to suffer a lot of discrimination and a lot of slurs they used to face. And इस फिल्म के दौरान शूटिंग में शायद इश्यूज हुए होंगे अनुभव सर को because of topography and the terrain, but otherwise काफी first timers थे, junior artists especially in Assam, or it was very refreshing to see them. First timers, in fact काफी first timers theatre actors थे for films. 2 actors ऐसे हैं हमारे फिल्म के अंदर जो NSD से हैं, जिनको मौका नहीं मिला था अभी तक मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में। 40 साल वेट करने के बाद उनको मौका मिला है और अच्छे रोल्स मिले हैं, and there was this hunger in them. So it was very refreshing. Okay. जैसे आप कह रहे हैं it's a natural sequel and you know, follow up from Article 15. क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था, ये भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। वो कास्टिज्म के ऊपर था, ये रेसिज्म के ऊपर है, इन अ वे एथनिसिटी के ऊपर है। सो उसका कोर सेम है। उसमें भी मैं कॉप होता हूँ, इसमें अंडरकवर कॉप हूँ। 2 कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, बट सबसे अच्छी बात वी ग्रोन फ्रॉम आर्टिकल 15 इज
इसमें राइट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं है। काफी कभी कभी हमें मिलता था कि ये जो मेन हीरो है फिल्म का आर्टिकल 15 में वो अपर कास्ट है, वो क्यों बचा रहा है इनको, बट वो इंडक्शन थी टुवर्ड्स कास्टिज्म जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता थी। जो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लेकिन इस फिल्म के जरिए वी हैव गिवन द माइक, वी हैव पास्ड ऑन द माइक टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वहाँ के एक्टर्स हैं, उन्हीं की कहानी और वो खुद ही उसको बयां कर रहे हैं, which is a big step. जी, was that also something a reason why you came on, Andrea, because you felt about the topic as well? You felt about the subject. Do you agree with the message that the film is giving out? And have you dealt with it as well? Of course. I actually initially was not aware of what the story was going to be about much. I just knew I was going to be playing a boxer, and that was interesting enough. But these are things, like that everyone, I would say, from my region relate to, because anyone who moves away from their home state to other regions in India, they do face discrimination, but in varying degrees. I've been fortunate enough to not have faced such bad, have had such bad instances, but it is prevalent and it is everywhere. Probably your friends and family. Yes, of course. Yeah. And I hope that this film brings about a change in people's hearts. Like I hope that they take it upon themselves to educate themselves, because I know that there is a lot of ignorance around still, not just towards the Northeast, but other communities as well. Because I know that this film is very relatable to any part of the country, where racism and discrimination is prevalent. आपने ये भी कहा है, मैं पढ़ रहा था कहीं कि आर्टिकल 15 एंड अनेक खास फिल्में हैं, कमर्शियल फिल्म्स नहीं है, 100 करोड़ फिल्म्स नहीं है। आपने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाना पड़ेगा। इट्स एन इंटेलिजेंट फिल्म। तो ये इसलिए क्योंकि इट्स नॉट अ टिपिकल सॉन्ग एंड डांस फिल्म। तो आर्टिकल 15 ने 60+ करोड़ वो किया था। सो इट्स इन द सेम जोन। इट्स द सेम जोन बिकॉज ये उसका एक सोल कनेक्ट है इस फिल्म का उस फिल्म के साथ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पर अब ऐसे फिल्म्स भी चल सकते हैं। ऐसे फिल्म्स आपको लगता है कि ये भी कमर्शियल फिल्म्स बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस कितना इवॉल्व्ड है ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि इसका नैरेटिव है, कॉम्प्लेक्स है। एंड आर्टिकल 15 वाज स्टिल रिलेटेबल। दिस इज समथिंग कंप्लीटली वी टॉकिंग अबाउट अ टेरेन व्हिच इज नॉट एक्सप्लोर्ड टिल नाउ। तो वो कितना उसके साथ उसको एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज आई थिंक जो इंट्रीग्ड है इससे वो तो डेफिनेटली देखना चाहेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। आपको कुछ कहती है, इंक्लूसिविटी की बात करती है। बट एज आई सेड अगेन, इट्स नॉट अ सॉन्ग एंड डांस फिल्म। वो टिपिकल कमर्शियल फिल्म्स नहीं है जो आप 100-200 करोड़ की बात करते हैं। इट्स एन इंटेलिजेंट फिल्म और उसकी एक अपनी दुनिया है, अपने लोग हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स बियॉन्ड कमर्शियल सिनेमा फॉर मी। पैन इंडिया फिल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, मगर अक्सर साउथ फिल्मों के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल। ये क्या ट्रेंड है कि आजकल साउथ फिल्म्स चल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? या यू डोंट फील इट्स अ ट्रेंड एंड इट्स जस्ट अ गुड फिल्म फ्रॉम द साउथ व्हिच इज डन वेल? यू हैव सेड इट, इट्स जस्ट अ गुड फिल्म। एक फिल्म का कनेक्ट होता है और वो साउथ की फिल्मों को शुरू से ही, आई थिंक इंट्रिंसिकली उनको अपनी ऑडियंस का पता है। They cater to the lowest common denominator. उनको masses की नफ्स पता है, पब्लिक की नफ्स पता है, और वो फिल्म उन्हीं के लिए बनाते हैं। वो हमेशा सिंगल स्क्रीन को दिमाग में रखकर फिल्में बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में हर तरह की फिल्में बनती हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में बनती हैं। खासकर वो कोशिश करते हैं कि मिडिल पाथ ट्रेड किया जाए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट किया जाए, या फिर हर एक तरह के लोग, हर एक तबके के लोगों को इंटरेस्ट किए जाए। बट as I said, it's not about that also. I think it's just the connect with the masses. और वो हॉलीवुड भी कनेक्ट कर पा रहा है, साउथ भी कनेक्ट कर पा रहा है। मार्वल की फिल्में 30-30 करोड़ का धंधा कर रही है ओपनिंग डे पर। साउथ की फिल्में ओपनिंग स्मैश बम्पर ओपनिंग्स कर रही हैं। अब भूल भुलैया 2 एक वेलकम चेंज आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। सो आई थिंक इट्स द फिल्म, नॉट द लैंग्वेज। साउथ से कुछ सीखने की भी आवश्यकता है क्या? फिर साउथ से सीखने की आवश्यकता है, आई डोंट नो, मैंने कभी वैसी फिल्म की ही नहीं। वो शायद, आई डोंट नो, वो मेरा ग्रेन ही नहीं है शायद वैसी फिल्में करना। तो जो लोग वैसी फिल्में करते हैं उनको शायद होगी, पर एट द सेम टाइम साउथ भी बहुत ज्यादा विभाजित है। इट्स वेरी वेरीड। मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ मलयालम सिनेमा से।
फहद फाजिल की फिल्में काफ़ी देखता हूँ, उनकी अक्सर फिल्में कमर्शियल नहीं होती इतनी, सो आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशंस आर डिफरेंट, बट प्रॉब्ली मलयालम सिनेमा मोर देन other cinema. But again, I would love to explore that side of mine. Also, I would love to do a Rohit Shetty film, because अगर उस genre का कोई master है तो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रोहित शेट्टी है. और जैसे आपने कहा कि it's not about the language, it's about the film. और आजकल languages के भी ऊपर काफी चर्चा हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि it's not about, it should just be looked at as Indian films, Indian languages, या फिर ये होना चाहिए हिंदी, तेलुगु, मलयालम डिवाइड या नॉर्थ साउथ डिवाइड? अब ये जवाब तो हमारी इंडस्ट्री ने खुद ही दे दिया है कि जब हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस साउथ की फिल्मों को अपना चुके हैं, इसका मतलब ये है कि साउथ की लैंग्वेज और लोगों को भी अपना चुके हैं, तो हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए. सो हमारा वो देश है ही नहीं जहाँ पर एक भाषा को किसी दूसरी भाषा के ऊपर रखा जाए. वी आर मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक. दिस इज नॉट दैट कंट्री जहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति को या एक भाषा को दूसरे के ऊपर रख सकते हैं. जी, साउथ को तो अपना चुके हैं, अब नॉर्थ ईस्ट को भी अपनाने की बारी है, इस वजह से आप भी अपनी फिल्म लेके आए अनेक. ओके, लेट्स लाइटन थिंग्स अप बिफोर वी एंड. हैव यू done boxing in real life, or was this the first time? No, this is the first time I had to learn how to do it for the role, and it was a very challenging and interesting time. Okay. Yeah. And were you a sportsman when No, woman when never. you were I younger? was not. I hated doing any kinds of exercise, or like I can't even run. But yeah, that's why it was so interesting for me to get completely out of my comfort zone, you know, and to become a completely different person. But I'm really glad because it gave me such a big space to grow, you know, and to learn so many new skills. When did you decide that you wanted to be an actor? Was it early on? Yeah, no. फिर अक्सर हो गया. Yeah, I actually never had any aspirations. I didn't audition for this role either. You know, Sir Anubhav Sinha, he just came across a picture of mine. And, you know, things worked out and I got cast for this film. So, yeah, I mean, sometimes things just happen with a stroke of luck, I suppose. If not this, what would you have done? I have been modeling for the past few years. Okay. So, yeah, and I'm also still studying. I'm doing my bachelor's. So, yeah. Good luck with that. Final question, Ayushmann, before we end. Versatility is your art, diversity is your forte. Diversity in the film as well, but in real life too. So a lot on the platter, and each film as different as it comes. So आगे के films के बारे में कुछ? आगे next आने वाली है Dr. G with अनुभूति कश्यप, where I play the male gynecologist. उसके बाद आएगी Action Hero, जो बहुत ही different genre है मेरे लिए. Of course, you see the glimpse of action in Anek, but Anek is not an action film; it's a political drama. But Action Hero is a hardcore commercial film with song, dance, action, and everything. So it's like a mixed bag this year around. फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे होता है? This is so amazing, but each film as different as it can be from the previous one. चंडीगढ़ करे आशिकी बिल्कुल अलग, अनेक बिल्कुल अलग, जैसे आप कह रहे हो डॉक्टर जी बिल्कुल अलग. कैसे by design, by is it just कैसे हो रहा है? ये हो जाता है. I think it's both ways. I'm also actively looking out for scripts which are very different in genres and story and narratives, and I also get these scripts fortunately. So it's like a happy marriage. Okay, if the producers are listening, कोई ऐसा genre या कुछ ऐसा? हाँ, मैं shout out देना चाहूँगा अनुराग बासु को, जोया अख्तर को, नीरज घेवान and रोहित शेट्टी. Okay, and any particular genre or any particular type? जो लोग ये genre अच्छा ये genre बहुत ही राजू हिरानी also. Okay, of course. Yeah. चलिए. Okay, thank you both so much for joining us. और हम चाहेंगे कि ये अनेक करोड़ कमाए अब बॉक्स ऑफिस पे भी. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड लेट्स होप ऑल्सो कि जो इनने मैसेज फिल्म में दर्शाने की कोशिश की है वो मैसेज भी लोगों के घरों तक पहुंचे, ताकि वी रियली एम्ब्रेस द नॉर्थ ईस्ट लाइक वी हैव डन विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज़ वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. थैंक यू सो मच. Thank you, Uday.